Testing. Hello, people. We got a TikTok. Oh, hello. Are we live? Yes, we are live. Hello, people. No, Raj is not going live. It's me. He's just helping me with this. And hi, Charming. Hi, Manish Sinha. I'm terrible at these technical things, so Raj is gonna help me with this. As promised, I am here, and we're gonna address a lot of your issues. At least we hope to, and we have a very, very special guest on the show, this live show that I'm having from my house. This live chat. I'm just joking, and it's the pioneer from the food industry, someone that we've all admired, and it's Sanjeev Kapoor, and he's going to be joining us. Chef, are you there? I can't see you. I can't see you. Yes, and he is there, and we will be going live. Actually, we are live. What am I saying? Guys, are we excited? First and foremost, let me take the opportunity to wish all who are fasting a very, very happy Ramadan Kareem. And yeah, happy fasting. We're still waiting for Chef Sanjeev to join us. I think he's also having issues. It's in times like these. Yay! Hi, Chef. Hello. Yes, Elvis has left the building. I noticed this. He was not smiling, and he was, oh my God, what is he doing to me? Huh? No, he's My used to God. it because we've done a couple of these yoga lives as well, and this was such a great opportunity that I didn't want to miss out on. And I know a lot of my friends, like our girls group, discuss that, you know, aaj kya paka rahi ho, aaj kya naya bana rahi ho. I was like, and everybody wants new ideas, new hacks. So I said, who better than you to advise us? So welcome, Chef Sanjeev Kapoor. And Thank so, namak swad anusar. I mean, if there's anyone who is who has नहीं नहीं patented नमक this सेहत line, अनुसार huh? अभी नमक Ab sehat सेहत anusar. So true. Yes. Yeah, नहीं So we were just, I was actually pondering over what could be the stuff that is running in our minds at this time. It is a difficult time. And I think it's far more difficult for people who are less fortunate. Actually, I really consider myself fortunate that we've got a roof on our heads. We've got ration coming home. But there are so many people out there who are living with limited resources. So, Chef, please share your ideas of how you think, you know, someone in the kitchen, our housemakers, our homemakers, can actually make it easier on themselves and their families. Yeah, so thank you very much, Shilpa, and thank you very much for having me here. Thank you very much. And you, as always, you're looking like $1 million. As Blow dry always. kiya maine khud hi. I've also become hairdresser, makeup, But I've cut my son's hair, cut my husband's hair. सब कुछ हो गया है अभी. सब कुछ आ गया. So I think खाने के अंदर this is a very good time to focus on food, and especially for people at home. सबको समझ आ गया है कि खाना कितना important है और कितना उस पे time लगना चाहिए. And people at home normally at times can take it for granted, right? They take it for granted. खाना तो मिल ही जाएगा. That's something. But for people to actually learn something from this would be that they need to learn how to plan. Like in hotels and restaurants, we call it menu planning, right? It's a Yes. subject. It's something we focus on, and Exactly. something that we do at home. It's something that we eat, let's say, twice or thrice at home at least. We don't do any menu planning. I think that is critical. That is so important to plan a menu. Now, planning a menu, you don't have to do it every day.
right? For a restaurant, most restaurants may do it between once every 6 months to once every year, right? Airlines may change the menus once every 30 days. They're at home. What can be done is we can do weekly menus. We can plan weekly menus. Actually write it down. Nobody does it. I did it. I have done it. It's so crazy that you have talked about it. Yeah, Because fantastic. 15-20 मिनट शाम में जाता है बस सोचने में कि कल क्या बनेगा लंच में और डिनर में. Right. It's so cumbersome. So that's a great tip to actually sit down and make a menu. मैंने तो पूरा चार्ट पेपर लिया है. मैंने 14 दिन का मेन्यू बनाया and I said at least in those 14 days, you know, the food is not repetitive. नहीं तो वही दाल सब्जी वही चिकन बनेगा वही. हम तो पेस्किटेरियन हो गए तो कितना हम लोग मच्छी खाएंगे. And actually in this time we've also realized or rather we are paying attention to rationing. अंडे भी कम आ रहे हैं कम मिल रहे हैं तो अंडों का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं घर पे वो भी कम हो रहा है. तो ब्रेकफास्ट में we are actually thinking about these things. We never ever thought about these things, you know, and it's rather shameful. But in times like these, I feel we've realized a lot of stuff that we can actually put into practice in the future. I just hope that this time that we have learned, or that has been or become a learning curve, doesn't go to waste, you know, Chef. So Correct. I really hope we come out as more positive, stronger individuals. And there's not, you know, experience is something that money can't buy. I really believe that. So ये जो experience, ये अनुभव जो रहा है हमारी जिंदगी में, मुझे ऐसा लगता है कि I feel it's like the best part. We've got so much time with our families. I opened my cupboard the other day and I was looking at all the designer bags and the clothes. I was like, क्या फायदा है इन सब चीजों का यार? There's no use of these things. And I'm like, you know, and then we are buying avocado for breakfast. Avocado is not being nowhere in the market now. I'm like, they're still surviving now. I mean, what is wrong with Loki and Rajma? Please tell me. You know, it's brilliant. We made Loki ka pancake that day. We put little besan and rice flour, chilies and what do you call it, turmeric, and it turned out so yum. And it is so simple and so easy. So what do you suggest? I mean, what are the things that you have learned in your career that, you know, sometimes I feel they say na, keep it simple, stupid. हम लोग इतना कुछ करते हैं and I just feel that sometimes the most simple dishes can turn out brilliant and cost effective. Always. So simplicity is something that lasts. Simplicity is something. So if you look at the best songs in the world, biggest hits in the industry ever, would have the simplest of beats. They would not be complicated. Anything that will become always would not be complex. It would be simple. Simple things are actually not that simple, but simplicity is most, I think it lasts for, yeah. Most people कुछ ना कुछ छुपाने के लिए कॉम्प्लिकेट करते हैं. So isn't it? तो मतलब कि मेकअप कब ज्यादा लगाना पड़ता है जब मतलब आपकी नेचुरल ग्लो नहीं हो, right? So same way, complications are needed to hide something. Simplicity is something that is bang on. That's something there and it's for everyone to see. And people get it the very first time. So that's the important part. So menu planning में एक और चीज बोलूँगा, involve the family. Families together. Yes, that's a great point. ऐसा नहीं बहुत पता चला कि आपने बना लिया. No. Give them, so let's say there are 4 people. सबको बोलो 25% of the menu belongs to you. What you want to eat. It's not that you are doing a job. It is what you want to eat. Write down. And you are only allowed 1/4. You are only allowed 25%. And once they do that, अब बाकियों को मौका मिलेगा. They'll also see, अच्छा मेरी पसंद की मिल रही है चीज. So then they start to respect others' choices that they also, right? And once you have that, shopping becomes easy. Shopping list आराम से बन जाती है. You can buy in bulk. You don't have to go in and out or ask for things. People can, if they are going out, they can buy in bulk and they can मतलब अभी ये स्टे एट होम के चक्कर में कई बार लोग क्या करें, अरे जाना पड़ता है, रोज भागते रहते हैं because they want to get out. No, actually you need to stay at home. So
I think मेन्यू ये प्लानिंग यहाँ पे बहुत अहमियत रखता है, बिकॉज इफ यू आर प्लान्ड then you know and you tell your family के sorry ये आज नहीं बन सकता because this I have to buy next week. You know, Correct. you have to have a discipline. I feel discipline is extremely underrated and underestimated, and to achieve Right. any greatness or any happiness in life there has to be a discipline, and I really live by that mantra. Yeah. Yeah. And we have to thank all the people who are joining. Thank you very I much. know. Hi. Yes, but I'm so happy to see you, chef. वैसे तो मिलते नहीं हो मुझे सिर्फ, you know, so I have to tell you guys, I have got to know chef better because मैं जो भी अपने YouTube पे recipes डालती हूँ वो मैं shoot करती हूँ chef के studio में, और कभी कभी we get fortunate that he also comes in and there's a lot of pressure at that time. तो एक ऐसा वाकया हुआ हमारे साथ. I have to share this, chef. I have to share this anecdote. You remember actually it was Eid. It was around Yes. Eid that time, and I was making a healthy version of sheer korma. So chef had entered. He just came and he looked. He said, "Okay, after you're done with it, come and give me some." So I made it, और हमने वो jaggery डाला as a sugar substitute because I prefer to work even at home, and that's what I preach because I practice it with no refined sugar. So I made it and पूरा शीर कोरमा जो है फट गया. So I was in shock. I said, "Oh God, chef is here," and the sheer korma is just, it just curdled, and I had no clue because I did everything right. I'd done it before at home. So I went very sheepishly to chef and I asked him. I said, "Yeah, chef, how did this happen? What did I do wrong?" So he said, for chef everything is about smelling. He'll first smell the food and then he'll put one little bit in his he'll do all of that. One whole tasting session happened. He's like, jaggery is, it has sulfur in it. This is not organic jaggery. I was like, oh my God, that was a revelation. Chef, you must talk about that. The stuff that we are buying also, how you must label read. हम अच्छे चीजों की परख कैसे करें? How do you differentiate? Yeah, I think first and foremost we need to be careful. We need to understand. We need to know. मतलब especially packaged food जितने हैं, packet वाली जितनी भी चीजें हैं, start reading the labels. Go for clean labels. I always say this, that if you're buying something and you look at the ingredients, and if there are ingredients that you cannot understand, you do not understand, they look like more medicine and things like that, True. do not have it. If you do not understand what is in it, why would you eat it, right? It's a different thing. I also say that about cosmetics. मतलब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने. Yeah, even there I talk about the same thing. So it is important that we have to start reading our labels. Go for clean labels, no insecticide, no preservatives, things like that, natural. So गुड़ में क्या होता है, over a period of time लोगों को सारी चीजें जो हैं over a period of time brown rice खाते थे, white rice शुरू हो गए. गुड़ normal खाते थे, नहीं, थोड़ा उसमें से सफाई कर लेते हैं. They want to clean it, and what do they clean it with? Sulfuric acid. And when they no, it's bleaching. अगर चाहे वो refined oil भी है, it is bleached, right? That's when it looks so nice. And if you but see I was filter, clueless. Even I didn't know that because I am a huge label reader. Right. When if I go to buy something, the first thing I do is I turn it. I'm like, इसके अंदर है क्या, मैं जानना चाहती हूँ. So, so that was a huge revelation. I had no clue that even with good, to whiten it or to make it look prettier. And I just think that all that glitters really isn't gold, guys. I think it's important to be conscientious, to be aware, to be sensible in these times. And I've actually also realized the importance of what we have, what India has to offer. And I really feel that for us, it's very easy because we can still live on dal chawal. I think I was happiest when I had rajma chawal with ghee at home. It's like a full-blown meal. It has all the fortified vitamins, minerals, the omegas. So I'm like, why do we look outward and try to, make our plates look cool? In these times, I've actually started eating, even with atta. I'm not joking. I started eating khapli atta, what the farmers eat.
Yeah, nice. And it's brown. It doesn't look pretty, but it's actually it's got more iron content, more fibrous. So the husk is not yet removed. So these are things I feel I've just discovered in my journey, and I just think that also in these times where you're trying to build immunity, it's very important to eat clean and to look after your gut. So it's like Chef rightly said, while label reading is important, it's also important, like everybody goes to Google, you know. So I really think that Google isn't Lord Almighty. I feel sometimes Google gives you so much information that someone like me also gets confused. I'm like, one person says milk is good, the other person says milk is bad, the other person says cashew is good, then they say cashew is bad. I'm like, it's just so contradictory. So just go with simple things. I really believe in the mantras of Ayurveda, Chef, and I know you also live by those mantras. And it's very easy if you understand the benefits of or just the basic philosophy of Ayurveda, and you would agree, Chef, is it everything has prana, tejas, ojas. So Bilkul. that is what makes our system tick. So anything that is fresh and that is clean has prana in it, and when you ingest it, it gives you prana, and if that prana is good, it gives you tejas, which gives you that glow. And when you have all that coming together, it gives you that balance in life, and it gives you the ability to think, the sensibility. And I think in life, you would also agree, whether it be food or a human being, balance is essential. है ना? आप हमेशा बोलते हो, तो वो मीठा भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए, वो नमक भी सही होना चाहिए, सो तीखा भी होना चाहिए, वो बैलेंस का होना बहुत जरूरी है. So I just think that I apply that rule in my life as well. And tell us also, Chef, in this time and age, I'm really worried because not recently, just yesterday, हम लोग discuss कर रहे थे, याद है, दूध के पैकेट्स या जो खाना बाहर से किराने की दुकान से आता भी है, डिलीवरी कर रहे हैं कुछ लोग जो इर्द गिर्द घर हैं, जो पास में है तो डिलीवर करने लग गए हैं. But how do you manage in terms of sanitizing those things, those products that come to your house, fruits ho, vegetables ho? What do you have to say about that? Because I had the most frightening experience yesterday. मेरे घर पे तो छोटा बच्चा है, and I got to know yesterday that my dairy guy was, he was positive. He was detected positive. And it really freaked me out. Not that he was there selling the milk, but the point is, they quarantined the entire place. So how do you take precautionary measures there? अच्छा, एक तो बड़ी रिक्वेस्ट आई है कि हिंदी में थोड़ी सी बात कर ले, तो मैं हिंदी में थोड़ा सा कर देता हूँ. हाँ, ऐसा मतलब आया है तो मैंने पढ़ लिया उसको. हाँ, इसमें तो आप माहिर हैं, आप ही करिए. तो जितने भी सामान आता है घर के अंदर, जब घर में सामान आ रहा है तो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो मतलब क्योंकि आजकल वो साबुन का सब जगह है, तो नहीं, इनको साबुन से नहीं धोना है. साबुन सब्जियों के लिए, फलों के लिए नहीं है. कई लोग मुझे पूछते हैं उसको साबुन से मत धो, ऐसा मत करो, राइट? सब लोग मतलब प्रेसिडेंट बनने में लगे हुए हैं आजकल. बट हाँ, नहीं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ. वो उसमें आई थिंक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं उनको अच्छी तरह से रनिंग वाटर में धोना है, और धोने के बाद में उनको पोंछ लेना है. दैट इज वन पार्ट. अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत एक स्टेप और आगे जाना है, तो देन यू कैन वॉश देम. उसको जो खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा, तो 1 लीटर या 2 लीटर पानी के अंदर 1 बड़ा चम्मच खाने का सोडा लिया, घोला, और सब्जियां और फल जो हैं उसके अंदर रख के स्क्रब किया अच्छे से, फिर पानी में धोया, पोंछा, and then store it. That is one way. That's a great tip. Yes. So baking soda is a great disinfectant, kitchen disinfectant. बहुत अच्छा होता है. फ्रिज वगैरह में कभी होता है ओडर नहीं करना आना चाहिए, तो उससे बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन. डाइनिंग टेबल वगैरह साफ करनी है, clean it with baking soda solution. That's very good. Vinegar is another good disinfectant. It's acidic. एक बेस है, एक एसिड है. दोनों का कॉम्बिनेशन ऑल्सो इज गुड. तो ये उसको केक्स में भी इस्तेमाल करते हैं. हाँ, केक्स में रीजन उसका दूसरा होता है. केक्स में जब विनेगर को इस्तेमाल करते हैं, द रीजन इज टू एक्टिवेट बेकिंग सोडा so that carbon dioxide is released. So that's the science of it. Makes it fluffier then. Yeah.
तो कमिंग बैक टू कि खाने में और जैसे ये है कि आपके दूध का पैकेट है, राइट, उसको जी अच्छी तरह से धो लो, राइट, दैट इज द की। बट जो चेन है, जिस तरह से जहां से आप ले रहे हैं, मेक श्योर दैट वो सोर्स पे आप ध्यान दें कि आप क्रेडिबल सोर्स है। जैसे आपने गूगल की बात की, तो गूगल में कहूंगा कि आप अच्छी सोर्स से इंफॉर्मेशन लेंगे तो ठीक मिलेगी। आप जो सामान ले रहे हैं वो अच्छी सोर्स से लेंगे तो वो अपने प्रोसेसेस ठीक रखेंगे। एंड एट होम ऑल्सो क्रिएट अ प्रोसेस, खासतौर से अपने लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, मेट्स के लिए, सबके लिए प्रोसेस क्रिएट कर लें। दिस इज व्हाट वी डू एट, मतलब आप जाते होंगे, कई बार आपने देखा होगा होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, टॉयलेट के पीछे लिखा होगा इतने बजे क्लीन हुआ, साइन कोई करके जाएगा, हर घंटे एयरपोर्ट में ऐसे लिखा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। द प्रोसेस, राइट। सो एट होम ऑल्सो ये सिंपल चीजें, राइट देम डाउन, एक प्रोटोकॉल कन्वर्ट, होना बहुत जरूरी है, हाँ वो बहुत जरूरी है, बिकॉज नहीं तो घरों में अभी होता होगा ही फिर। नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और अब तो मतलब बिकॉज बहुत सारा स्टाफ आ भी नहीं रहा है तो वो एक्स्ट्रा बोझ पड़ गया है, जितने स्टाफ जो घर पे हैं हमारे। तो आई फील के ये जो आपने बात बोली ना, बहुत सही बोली है, क्योंकि ये प्रोसेस हम लोग अगर लिख के देते भी हैं उनको, देयर इज ऑलवेज अ चार्ट कि मंडे के दिन फ्रिज हैज टू बी क्लीन, ट्यूसडे के दिन ये होना है, थर्सडे के दिन यू शुड क्लीन ऑल द पल्सेस एंड द डब्बे एंड व्हाटएवर, सैटरडे के दिन इन्वेंट्री चेक करके फिर पैंट्री में फिर मुझे बताइए कि क्या क्या खरीदना है किराने की दुकान। लेकिन ये क्या हो जाता है, आई फील दे डू इट फॉर 3-4 वीक्स एंड देन अगेन दे बिकम लिटिल लैक्सिडेजिकल। तो ये बड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है घरों में। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली दे डोंट बिकम लैक्स, हम लोग लैक्स हो जाते हैं, वी डोंट चेक। अगर आप चेक करेंगे तो, हम लोग नहीं चेक करेंगे तो इट्स ऑलवेज, वो साइन क्यों करवाते हैं कि आपने किया उसके बाद में साइन, जहां साइन नहीं हुआ अच्छा ये काम नहीं हुआ, अगर साइन नहीं हुआ तो इसका मतलब काम नहीं हुआ है, राइट। सो चेक्स आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, किसी ने पूछा है कि आपकी फेवरेट परफ्यूम कौन सी है? मैं तो बहुत सारी होती है, बट अमुआज आई लव मतलब खाने की बातें। मेरी फेवरेट परफ्यूम अच्छा, हम इनसे भी बात कर ले तो हमारी बातों से बोर हो जाएंगे। अगर आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं अभी, अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके दुविधाओं का जवाब दे। एंड शेफ एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू जिन्होंने कहा कि आपको मेरा योगा बहुत पसंद है। मेरा योगा नहीं है, योगा तो मतलब सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन अगर आप योगा कर रहे हैं तो मैं इतना बता दूं कि योगा से ही होगा। तो प्लीज योगा करिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस समय में, स्पेशली स्ट्रेस को रिड्यूस करने में योगा बहुत लाभदायक है। सो फॉर ऑल यू गाइस हु आर लिसनिंग टू अस, एंड आई एम श्योर शेफ, ये जो ग्लो है आपके फेस पे, इसके पीछे सिर्फ खाना नहीं हो सकता, डेफिनेटली आप भी प्राणायाम करते होंगे। वो तो कह रहा हूँ, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, वो तो है ही है लाइफ में, राइट। वो तो उसके बिना एक्चुअली अभी मैं पढ़ रहा था, आज सुबह मैं पढ़ रहा था कि दैट समबडी हु वाज पॉजिटिव और काफी प्रॉब्लम हुई, सेज कि दैट प्राणायाम एक्चुअली सेव्ड दैट पर्सन क्वाइट ओल्ड। एंड सो आई थिंक ये हमारे पास में इतनी एंशिएंट विजडम जो है, वो मतलब हमारे पास क्योंकि फ्री में आई है, घर की मुर्गी दाल बराबर, हमें लगता है कुछ वैल्यू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक वो सिंपल चीजें जो पहले की हमारे पास में है, वो धरोहर है। आई थिंक दैट समथिंग, इट इज सो प्रेशियस दैट वी नीड टू मेक श्योर दैट वी यूज इट। उसको मतलब ऐसे नहीं है कि बिना। अच्छा, रेसिपी भी लोग पूछ रहे हैं। हाँ, क्विक स्नैक रेसिपीज अनीशी ने पूछा है, क्विक स्नैक रेसिपीज अगर आप दे सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। ये जो ब्रेड के पकोड़े हैं, हाँ, जब मैं स्कूल में थी तो बड़े सिंपल थे। आई नो फ्राइड है, लेकिन इसका कोई कोड है कि हम लोग फ्राई ना करें, और अगर तो इसको मतलब कोई दूसरे तरीके से बना सकते हैं, एयर फ्राई कर, एयर फ्राई कर। मैं संडे के दिन लेकिन तल के खा लेती हूँ। नहीं देखो, को पता है कि कितना खाना है, ऐसा नहीं कि लोग बोलते हैं तेल, मैंने कहा तेल विलन नहीं है, तेल भी चाहिए, फैट इज, बिल्कुल, यू नीड फैट, ऑफ कोर्स यू नीड फैट, बट देयर मेनी पीपल वो मतलब इतनी अति कर देते हैं, दे जस्ट गो ओवरबोर्ड। डोंट गो ओवरबोर्ड, बैलेंस का आता ना, बैलेंस इन लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शमिता शेट्टी जो मेरी बहन है, वो भी मतलब वो कभी ज्वाइन नहीं करती, वो पूछ रही है कि ये जो आपने बात बोली बहुत कमाल बोली कि बेकिंग सोडा में वेजिटेबल्स को रखो,
लेकिन हाँ शमिता आजकल कुकिंग करने लगी है। कितनी देर तक रखे ये पूछ रही है। हाँ, तो करीब 5 से 10 मिनट, उसके बाद में स्क्रब कर दें उसको अच्छी अच्छा, तरह से। तो कोई भी सब पालक का पत्ता फट नहीं जाएगा? नहीं नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जेन्युइन पालक है। को मत। हाँ बिल्कुल 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 हाँ। जेन्युइन है। हाँ, सोच समझ के बोला करो संजीव कपूर। हाँ, मतलब पालक क्या है, scrub किया इतना रस। हाँ नहीं नहीं, या अबाउट 5 to 10 मिनट्स, यू डोंट नीड। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा देर रखने से खुश हो जाएंगी सब्जियां उसमें, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, So just scrub them guys, but make sure कि फटे नहीं कुछ। हाँ but जो रेसिपीज की बात कर रहे हैं, are there any quick recipes शेफ जो आप सजेस्ट करते हैं जो जल्दी झटपट बन जाए? ढोकलाज आर फैंटास्टिक। मुझे लगता है मूंग दाल के चिल्ले भी बहुत कमाल बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बनाना ओटमील के पैनकेक्स। और ये मतलब एक चीज मैंने शुरू किया है हमारे घर में, डिनर जो होता है वी रियली ईट लाइक पॉपर्स। तो हाँ हमारा सिर्फ लंच सबसे ज्यादा होता है, तो हाँ 2 सब्जी मैक्सिमम और एक दाल, राइस होगा या बाजरे जवार का, बाजरे जवार की रोटी होगी। सो इट्स रियली रियली सिंपल। बट डिनर जो होता है वो एक कोई डिश रख देती हूँ मैं टेबल हाँ पे। तो वो हम्म, एक डिश जो होता है, these one pot dishes. So are there any suggestions? So I actually tried out a soya keema macaroni, obviously a quinoa macaroni. हम्म, जो अभी आजकल मिल नहीं रहा मार्केट में, तो बहुत कम यूज कर रहे हैं हम लोग। लेकिन उसमें मैंने वेजिटेबल्स मिला के, सोया खीमा डाल के, और ऊपर से मैंने पोटैटो मैश करके उसके ऊपर लैक्टो फ्री चीज, वो भी नहीं मिल वाह, रहा है आजकल, तो बहुत बचा के हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन बहुत कमाल बना। सो काफी पौष्टिक भी था और मजा भी आया। it wasn't a boring dish, you know, so you had everything. And some days I did like a salmon keema, तो बहुत, हाँ हाँ, because we don't eat chicken, और actually बहुत tasty हो गया। So today नाइस। we've got house made। मुझे ये पूछना पूछना था कि ये सोया की माँ कौन है? बहुत खराब जोक था ये। What is what my daughters call dad jokes. Then I Yeah. say dad band, हाँ, it's this dad is, band. Yeah. अगर So आप, anyway, हाँ, but ये इतना जो अच्छा खाना नहीं बनाते तो मैं माफ नहीं करती आपको। सोया वाला जो है, there's a traditional dish जो मीट के साथ में बनाते हैं, shepherd's pie. So it's a take on shepherd's pie. It's a fantastic dish. आज खाओ से बना है लंच में? हाँ, मैं नहीं बना रही, ओ, लेकिन हाँ, नहीं बना। वो है जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, जिनको बनाना आता है। तो मैं खाओ कोई शेफ वेफ नहीं हूँ। यू नो, आई लव व्हाट यू सेड टू मी शेफ। मैंने जो अपने चैनल पे रेसिपीज बनाने की शुरुआत की, जब मैंने शुरुआत की थी, एट दैट टाइम आई नेवर थॉट कि मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। मैंने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, मुझे सीखने का शौक है। And I've grown up watching you. I loved Yan Can Cook. You remember all those shows that we used to have? तो बहुत अच्छा, आपने बहुत, जी, बहुत अच्छा दोस्त है मार्टिन यान। अभी भी है? हाँ Please, हाँ। it was Yeah. such an old show. You please Yeah, say yeah. hi to my Shamita and I are huge big fans. Old. He was then also. He was old. Yeah. 75 years plus. He is. Yeah. He's Yeah, old. but amazing. But Yeah. you know, जो लाइन के साथ वो कुक करते थे, you used to say, if Yan can cook, so can you. तो That's right. honestly with that thought और उस philosophy के साथ मैं किचन में उतरी। मैंने सोचा, मैं अगर एक मीडियोकर कुक होने के नाते, मेरी डिशेस मैं बहुत प्यार से बनाती हूँ, शायद इसीलिए लोगों को जब मैं परोसती हूँ लोगों को अच्छा लगता है। और आपने भी कहा, क्योंकि जब मैं शूट करती हूँ मैं कोई ये सोच समझ के बोलती नहीं हूँ, मैं जो दिल से आता है, मैं जब इंग्रेडिएंट्स भी डालती हूँ तो हिसाब से नहीं डालती। जो सिर्फ बेकिंग के वक्त मैं हिसाब से डालती हूँ, अदरवाइज सडनली मुझे ऐसे लगता है कि अरे इसमें मुझे ये डालना चाहिए, तो मैं डाल देती हूँ। और आपने भी मुझे बोला कि ये क्वालिटी अच्छी है, ये जो आप दिल से करते हो। तो मुझे यही बोलना है जितने भी हमें देख रहे हैं कि अगर, और इस वक्त में बहुत सारे लोग शेफ्स बन चुके हैं मजबूरी में। My sister being one, she had never ever ventured out in the kitchen,
and honestly she has surprised not just herself but all of us. तो cooking is not rocket science. अगर आप कुछ करना चाहो और अगर आप दिल से करते हो, and I think it's also experience based, है ना? तो जब आप एक चीज बार बार करोगे तो आप इम्प्रूव होते जाएंगे. तो लेकिन ये जितने भी, जी बताइए प्लीज. उसमें ये टिप है कि यू शुड ट्राई. थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है, ट्रेनिंग लगती है, रियाज लगता है किसी भी चीज में, चाहे सिंगिंग है, कुकिंग है, किसी भी चीज में रियाज लगते हैं. तो ट्राई करें, डू व्हाट यू फील एंड डू इट विद कॉन्फिडेंस. अगर अच्छी बन जाए तो बोलिए कि शिल्पा शेट्टी की रेसिपी कॉपी की थी इसलिए अच्छी बनी है. खराब बने बोले संजीव कपूर की थी, पता नहीं क्या हो गई है. बट ट्राई, डू ट्राई. नहीं, देयर आर मेनी टाइम्स कि मैं कभी मैं ट्राई करती हूँ कि अरे ये मैदा ना इस्तेमाल करके, स्पेशली बेकिंग के वक्त, कि आमंड फ्लावर मैं यूज करूंगी, इसको कुछ अलग कुछ बनाऊंगी. लेकिन कभी रिजल्ट बहुत खराब आता है और मैं सोचती हूँ हे भगवान, इसको मैदे में ही बनाना चाहिए था मुझे. बट आई जस्ट थिंक लाइक यू सेड, जब आप बार बार किसी चीज पे काम करो तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यू विल बी अनसक्सेसफुल फॉर दैट मोमेंट, बट देन यू विल रियलाइज कि इसका तोड़ कुछ और होगा शायद, तो उसको आप ट्राई आउट करोगे और नतीजा हमेशा सक्सेसफुल होता ही है. लेकिन ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए. सो मेरी बस यही ये पता नहीं गुजारिश है लोगों से कि जितना हो सके जब आप किचन में हो तो आपके हाथ में आपकी फैमिलीज की लाइफ है और उनकी हेल्थ है, तो आप 1000 बार सोच के मेन्यूज बनाएं. आप ये सोच के जब आप बेकिंग भी करो तो आप शुगर सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करें. ट्राई नॉट टू यूज दैट मच रिफाइंड शुगर. And I'm taking the carte blanche even for chef also when I'm saying this, that I think all of us, क्योंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं, I feel there's so much adulteration that we are not living in the time where we used to have Brown and Polson butter and it was all pure. There's so many additives. जब पहले याद है हम लोग मस्का पाव खाते थे और कुछ नहीं होता था, really. And now you feel acidic. तो एसिडिटी से मुझे याद आया कि ट्राई एंड कीप योर बॉडीज अल्कलाइन. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट फूड्स दैट हैव हायर पीएच लेवल्स. एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं दैट अभी सीजन में मैंगो है, इट्स गॉट सम 9 का पीएच लेवल. टैंजरीन्स है, पाइनएप्पल्स में बहुत गुण है, इट्स गॉट ब्रोमेलेन, इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी एज वेल. ऑरेंजेस, टर्मरिक चाय, और इवन अगर आप थोड़ा सा टर्मरिक ग्रीन टी में डालना चाहें, सिनेमन के साथ, जिंजर के साथ, बहुत स्वादिष्ट होता है. दीज आर थिंग्स दैट यू कैन डू. इवन सत्तू, शेफ, सत्तू इज सच अ कूलेंट. अभी गर्मी की सीजन शुरू हो गई है, तो बताइए. अभी सत्तू का टाइम होगा. माय मॉम विल हैव इट लास्ट फ्यू डेज. शी स्टार्टेड दिस कि सत्तू बनेगा. और पहले तो होता ही था सत्तू जो है, मतलब चने गर्मियों में ठंडक देता है, सबको पता है. चना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इतनी कमाल की चीज है, फुलनेस देता है, हाई प्रोटीन, कमाल की चीज है. आई थिंक यू नेम सो मेनी थिंग. एंड अल्कलिनिटी जो है बढ़ाने के लिए आई थिंक एक बहुत जरूरी चीज है, स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिमाग और गट जो है जुड़े हुए हैं. बिल्कुल. अगर दिमाग साफ है तो पेट साफ है. So that's such a beautiful point you made, chef, and that so beautifully put. मैं हमेशा यही बोलती हूँ लोगों को कि अगर आप खुश रहेंगे और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, automatically your insides will feel that and you will radiate that. So I think happiness should be sold in a pill, because that's what we really need. और बहुत कम लोग समझते हैं कि ये जो लाइनें, ये कोट्स जो लोग लिख कर गए हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, इट ट्रूली इज. लोग जी खोल के हंसते नहीं है, मैं हंसती हूँ. आई जस्ट फील दैट हम लोग रुक के और रोक के हंसते हैं. मतलब जबड़े फाड़ के हंसो यार. It really, you will see that it actually kickstarts your endocrine system,
and it does so much to your inner self that it will reach your mind. एंड इसीलिए जब हम जब योगा पोजेस भी करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, सूर्य भेदना करते हैं, it actually starts that fire within your system, and I think that's what most people lack in today's time, that they need to cleanse their mind, they need to feel positive. इस वक्त में तो ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन है हिंदी में, सकारात्मक ऊर्जा लेके आने के लिए नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकिए। क्या बात है, बहुत आप फेंट तो नहीं हुए? मतलब मैं अब अपने अंदर से मैं अब हिंदी जगाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर यह कहना अतिशोक्ति नहीं होगा कि इस भगवत का अवलोकन करने के लिए सोचना पड़ेगा कि तो छोड़ो कोई बात नहीं। मैं किंग करता है विमूढ़ हो गई हूँ। जिनको हमसे हिंदी में वार्तालाप करना है अभी शुरू करें। अभी देखिए कितने सारे लोग हंस रहे हैं। चलो और कुछ नहीं, एटलीस्ट हंसी तो लेकर आए हैं उनके फेसेस पे आज। और हम हंसी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, है ना शेफ? हम इस वक्त को भी बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मुझे लगता है। कुछ लोग, जब मैं अपने फ्रेंड से कभी कभी बात करती हूँ, जब लोगों की बातों को सुनती हूँ, ऐसे ही कह देते हैं लोग कि यार ये क्या है यार। मैं समझती हूँ इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन, स्पेशली जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, जो हमारे नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए तो दे डोंट इवन हैव अ डेज ऑफ। लेकिन जो घर पे बैठे हैं, and I really have, my heart goes out to all those people, and my heart is filled with gratitude कि हमारे पास वो लग्जरी है कि हम घर पे बैठ के आराम कर सकते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर if you can make a difference to even 2 people out there, please आप कतराइए मत, make that difference। अगर आप किसी के घर तक राशन पानी पहुंचा सकते हैं, प्लीज करिए। और जहां तक हमारी बात है, while we have this time, this is so precious, है ना शेफ? ये वक्त आप कितने बिजी हो, मैं कितनी बिजी हूँ, ये वक्त शायद ही कभी आए, तो इसे बस हम चेरिश करें एंड वी मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। और जब जो होना है तब सो होगा। सो हर रोज को एंजॉय करना, हर मोमेंट को एंजॉय करना, आई थिंक दैट इज द लर्निंग दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस टाइम। कि हर चीज को, नहीं तो भागते भागते दिन निकल जाता है, महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं। सो आई थिंक ये रिफ्लेक्शन का टाइम है। वी कैन सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट एंड सी कि अच्छा अभी आगे, तो जैसे मैं मेन्यू प्लानिंग की बात की, दिस इज टाइम टू प्लान अहेड। बहुत सारे लोगों में हाँ, अभी तो मतलब बेसिक चीज कि अच्छा लॉकडाउन खत्म हो गया, उसके बाद में बाहर निकले कई लोग ऑफिस के लिए। तुमने सोचा है कि कैसे बैठेंगे, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग होगी, कौन से डिसइंफेक्टेंट रखने हैं, क्या प्रोसेसेस होंगे, क्या उसकी सारी प्लानिंग हो गई है, या उस दिन सोचोगे जब ऑफिस जाओगे तब सोचना शुरू करें? आई थिंक वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम, वी हैव टू पुट इट टू राइट यूज। खुश रहें, आबाद रहें, मजे से रहें। आई जस्ट फील के ऑल्सो हम एक चीज को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हेल्थ और लाइफ, क्योंकि हमें फ्री में मिल जाता है ना? वी ओनली वैल्यू इट व्हेन वी गेट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो आई जस्ट फील दैट दिस इज, जैसे आपने कहा और मैं रिइटरेट करती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा वक्त है रिफ्लेक्ट करने के लिए, इंट्रोस्पेक्टिव होने के लिए। और जितने लोग वर्कआउट करना चाहते थे या एक पता नहीं शायद एक स्टार्ट करना चाह रहे थे और वक्त की वजह से नहीं कर पा रहे थे, इससे बेहतर वक्त आएगा नहीं। सो आई थिंक यू शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम, use this time to get a sense of direction, जैसे आपने कहा। एंड हाँ, हमने गट के बारे में बात की। मैं यही सोच रही हूँ कि आपने सबसे अच्छी बात पता है इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, फॉर मी what I've taken back is to get families involved while you're doing your household chores। क्यों हम
सोचते हैं, जो पति है और बच्चे हैं, कि ये काम सिर्फ मम्मी को करना चाहिए। हम कितना अंडर वैल्यू करते हैं यू नो व्हाट दीज होम मेकर्स डू फॉर अस। तो ये बहुत अच्छा वक्त है अपने अप्रिसिएशन को दिखाने के लिए भी, और हाथ बटाइए। और जैसे शेफ ने कहा कि यू नो ट्राई एंड डिवाइड द चोर्स। और मुझे लगता नहीं कि इस वक्त में आपके पास कोई एलिबाई भी है कि आप बोले कि आप बिजी हो। ना, नहीं नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। ये मैं तो खैर हमेशा कहता हूँ, आज के लिए नहीं, हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जब कोई किसी खाने में से कमी निकाले, कोई पति कभी कमी निकाले, तो उनको बोलो खुद बना लो, दैट्स इट। कहाँ चलता है ऐसे शेफ? या हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे क्या बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि काफी हाँ लोग पूछ रहे हैं स्नैक की रेसिपी, तो मैंने अभी देखा था किचन के अंदर ब्राउन वाला पोहा पड़ा होता, जैसे ब्राउन राइस होता है, पोहा भी हाँ तो हाँ, ब्राउन होता है। वाह, तो ब्राउन पोहा और उसको स्वीट पोटेटो, शकरकंदी जो है, हाँ हाँ उसके टिक्की या कटलेट बना के, मतलब थोड़ा सा पानी में उसको भिगोया, बॉईल करी हाँ हुई शकरकंदी ली, और उसमें थोड़ा सा प्याज को काट के, नमक मसाला, नमक चाट मसाला सब डाल के, मेक अ टिक्की और समथिंग, एंड जस्ट थोड़ा सा तवे के ऊपर सेका, मजेदार, टेस्टी, हाँ 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 डिलिशियस, हाँ हाँ। इजी। ये शाम मैं को ट्राई करूंगी। ये मैं नाइस। ट्राई, यू नो ये जो इजी वाले रेसिपीज ना, जिसमें ज्यादा ताम झाम नहीं हो, मुझे ऐसे वाले अच्छे लगते हैं। बट शेफ, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू से दैट यू नो you've actually given so many people a sense of direction. आपने कुकिंग को क्या है बहुत इजी बना दिया हम सबके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल ऑलवेज, नॉट जस्ट विथ योर कुकिंग बट इवन एज अ ह्यूमन बीइंग। मुझे जब भी आपसे मिलती हूँ ना, आपसे बहुत ही मतलब बहुत कमाल की ऊर्जा मिलती है मुझे, बिकॉज यू आर सो फुल ऑफ लाइफ योर सेल्फ, यू आर सच अ पॉजिटिव पर्सन। और बहुत कमाल बात है ये, और बहुत हार्ड वर्किंग है ये। कोई पूछ रहा है ब्रेड पकोड़ा रेसिपी क्या है? ब्रेड पकोड़ा रेसिपी, ब्रेड लिया, आलू बीच में भरे, बेसन के उसमें डिप किया, फ्राई कर दिया, ब्रेड पकोड़ा रेसिपी, दैट्स इट। फ्राई नहीं, अगर फ्राई नहीं करना है तो फिर एयर फ्राई, आई सेड एयर फ्राई। मैंने, सुन लो। हाँ, तो एयर फ्राई, मेरी जो एयर, फ्रेंड की हाँ, माँ थी, जब मैं ट्यूशन के लिए जाती थी उनके घर, जब मैं स्कूल हम्म, में थी, तो वो हम्म, ब्रेड को थोड़ा सा गीला करती थी, पूरा हम्म, पानी निकालती थी, एंड देन शी वुड पुट कल की जो सब्जी पड़ी हुई है फ्रिज में, तो शी यूज्ड टू ऐड दैट इन द सेंटर, पुट इट लाइक दैट, एंड देन शी वुड तलो दैट। और हाँ वो जो उसको, ऐसे मतलब खस्ता और कुरकुरे बनते थे, आहा हा, कोई बेसन नहीं, कुछ नहीं, and that taste I can still feel in my mouth, you know, so simple it used to be. आई नो। And आजकल मैं सोच रही हूँ कि ब्रेड को अब मैं होल व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल करती हूँ, और उसमें थोड़ा सा फ्लैक्स सीड डाल देती हूँ, टू मेक इट सीम लाइक इट इज हेल्दी। वो ऐसे ही होता है हाँ लाइफ में। हाँ लाइफ में हाँ, ऐसे ही होता और मैं पूरा मतलब डीप फ्राई नहीं करती, थोड़ा सा मैं शैलो फ्राई कर देती हूँ, ताकि एटलीस्ट एजेस जो है थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। है। हाँ, मतलब तो एक ये मिसनोमर है कि फ्राइड, पूरा फ्राइड, डीप फ्राइड और शेलो फ्राइड। अगर मतलब आप शेलो फ्राई में काफी सारा तेल डाल रहे हैं, तो भी आपको तेल काफी उसके अंदर चला जाएगा। सो नॉट नॉट दैट यू आर शेलो फ्राइंग, या आई तो नो, पैन, बस थोड़ा सा पैन फ्राई। बट यू नो चल, जब मेरे पति पूछ लेते ना कभी कभी मुझसे कि अरे ये फ्राई हुआ है ना, ऐसे नहीं नहीं, इसे थोड़ा सा शैलो फ्राई किया है। हाँ। So he thinks it is not that right. So he does not want to eat fried at all. He suddenly become very healthy. I wonder why. Yeah. Yeah. पड़ोसियों का कमाल है लगता है। पता नहीं क्या है, पता नहीं आजकल he's I know. impressed by this girl Shilpa Shetty. So yeah. So he's हाँ, turning his ways. No, but it's nice. पता है मुझे, हमारी शादी को 10 साल हुए. I've known him for nearly 12 years. पहले वो मजाक उड़ाते थे, अरे why you so this thing, why, और मैं खाती बहुत हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, वे both foodies. लेकिन अब उनको समझ आता है, पहले वो एरेटेड ड्रिंक्स पीते थे,
और जंक फूड खाते थे. अभी खुद ही he has turned pescatarian. We've not touched junk food, I don't know for how many years. अब वो पूछते हैं मुझे कि ये मुझे चाहिए, मुझे 3 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग चाहिए, मुझे ये चाहिए. अभी बेचारे को सिर्फ 2 अंडे मिल रहे हैं सुबह. So we really have to, like, you know, ration everything. Yeah. So no, but seriously, I really feel कि it's wonderful कि एक विल पावर का खुद ही होना बहुत जरूरी है. अगर कोई आपको बोल रहा है हेल्दी बनो, हेल्दी बनो, हेल्दी बनो, और आपको अंदर से अगर वो आवाज नहीं आ रही है, तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज. एक वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का लेकर आना बहुत जरूरी है. एंड आई रियली फील दैट दैट इज द नीड ऑफ द आवर. ये जो क्रैश डाइटिंग लोग करते हैं और सिर्फ एक लहंगे में उसको फिट होना है, मुझे एक शादी पे जाना है, मुझे अच्छा लगना है, दीज कैन नॉट बी द रीजंस यू शुड वांट टू लूज वेट. तो हेल्थ आई थिंक शुड बी ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस. एंड अगर आप डाइट मेंटेन करो, ऐसा डाइट करो कि आप लॉन्ग टर्म मेंटेन कर पाओ. तो एक एक छूट भी दो अपने बॉडी को, ताकि आपके माइंड को समझ आए कि भैया इस दिन पे मैं कुछ भी खा सकता हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा. बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर माइंड एज वेल. आपका जो माइंड है आपकी बॉडी से ज्यादा पावरफुल है. तो अगर आप कुछ सोचते हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दैट विल मैनिफेस्ट. तो मुझे ऐसे लगता है कि लोग जो गिल्ट ईटिंग करते हैं ना, ये सबसे हानिकारक है उन लोगों के लिए. बिकॉज जब आप गिल्ट से खाते हो या गिल्ट में खाते हो, तो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. तो आप जो भी खा रहे हो वो आप अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करोगे ही नहीं. तो जितने भी लोग हैं जो यंगर जनरेशन है हमको देख रहे हैं, आई रियली सजेस्ट दैट डोंट ईट विद गिल्ट. अगर आप खा रहे हो, खाइए मस्त होके, लेकिन बार बार मत खाइए. मुझे लगता है कि आई थिंक टू मेंटेन अ बैलेंस की बात हम लोग बात कर रहे थे. बैलेंस का होना जरूरी है. एक वो आई जस्ट फील दैट you have to understand where to draw the line and where to tell yourself कि this is what I will allow myself and this is where I should stop. ये समझ होना बहुत जरूरी है. I think वो अपने आप अंदर से ही आता है. That is something that comes from within. और उसका अच्छा बुरा रिजल्ट खुद ही को मिलना है. एग्जाम अपना होता है, रिजल्ट भी अपना होता है. ऐसा नहीं है खराब एग्जाम लिखा तो रिजल्ट किसी दूसरे का खराब आएगा, अपने ही खराब आएगा. राइट. सो मेरे फेवरेट एक लाइन है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है. सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ. टेक केयर ऑफ इट. एक लाइफ है, उसको वेस्ट, मतलब प्रेशियस है, सबको पता है प्रेशियस है, बट यू वुड वेस्ट. टेक केयर ऑफ इट. उसको ध्यान से रखो. वो लेजीनेस आती है which is natural. I think वो नेचुरल ह्यूमन नेचर है. बट आई थिंक जो उसके बाद में थोड़ा सा पुश करने के बाद में जो मजा आता है, एंजॉय दैट्स इम्पोर्टेंट. कोई भी एफर्ट का शायद हो सकता है उस. हाँ, कोई बोल रहा है दिस इज सच अ पॉजिटिव सेशन. थैंक यू. अभी पॉजिटिव इज गुड. somebody is asking us for banana fritter recipe. जिसने भी पूछा है, ये मतलब फ्राइडे मांगना चाहते हैं ये हमसे. I know. ये मतलब they are frittering away all the talk that we have given. पर चलो संडे आ रहा है शेफ, कल संडे है. संडे के दिन खाइए मस्त होके. कोई भी ऐसा एक दिन चुनिए जहाँ पे आप डिसाइड करो कि आज मैं चीट करूंगा, अपने पति और बीवी के ऊपर नहीं, सिर्फ खाने के साथ. सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है शेफ इन लाइफ, स्पेशली लॉकडाउन के वक्त. वही किसी ने कहा कि इट इज क्वाइट नॉर्मल, किसी साइकेट्रिस्ट ने बोला इट्स क्वाइट नॉर्मल कि आप ये लॉकडाउन में अपने कुर्सी से, पेंटिंग्स के साथ, पौधों के साथ में आप बातचीत करना शुरू हो जाते हैं. इट्स क्वाइट नॉर्मल, टेंशन मत लीजिए. अगर वो वापस बातचीत करना शुरू कर दे तो टेंशन वाली बात. इट्स नॉट. तो बताइए शेफ, what do you suggest for banana fritters? So बनाना मिल रहा है. बनाना मेरे पास अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ पड़े हुए हैं. बनाना मिल रहा है. सो देन दी एक्चुअली नॉर्मली मैदा से उसको हम बनाते हैं, बट यू कैन एक्चुअली मेक इट विद आटे के साथ में भी बना सकते हैं. क्या बात कर रहे हो? या बिल्कुल आराम से.
Yes, definitely you can make it. Actually, आटा की जगह try रागी आटा, try नाचनी का आटा, right? Try नाचनी का आटा powder and you eat egg, एक egg उसके अंदर मिक्स करके make a batter of it and उसमें बनाना को डाल के you'll have to fry it, right? And तो जो नाचनी वाला है उसके अंदर थोड़ा सा maybe add some dark chocolate to it because that color in any case is dark. You say Wow. that and dark chocolate banana fritter, right? That's ये हुई something. ना बात, कमाल है, कमाल है, कमाल है, ये तो मैं बनाऊंगी, ये Yeah. मैं बनाऊंगी. It sounded healthy. ये मैं अपने पति को नहीं बोलूंगी कि मैंने फ्राई किया है, वो अलग चीज है, लेकिन मैं बोलूंगी देखो रागी के आटे में बनाया मैंने. हाँ, so मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. हमारे घर में डोसा वगैरह, my favorite is डोसा. Yeah. हमारे घर में मतलब हफ्ते में 1-2 बारी तो डोसा कम से कम होता ही होता है, maybe more. मैं तो साउथ इंडियन हूँ. हाँ, वो तो है बिल्कुल. लेकिन आजकल जो डोसा वगैरह है वो साउथ इंडियन नहीं, वो तो मतलब सबने अडॉप्ट ऐसा कर लिया है. Yeah, my husband is Punjabi, he loves dosa and idli and all of that. ज्यादा अच्छा लगता है, I can tell you that. Yeah. Right? You're Punjabi. I am पूरा पंजाबी ही जी, मैं I am. So वो रागी का डोसा हम लोग खाते हैं ज्यादा. Yeah, that's what we have. How do अच्छा, you ये make it? डोसा नॉर्मली जैसे तो आपका टैलेंट जो है हम पूरी तरह से निचोड़ेंगे ना. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे थोड़ी जाने देंगे हम. नहीं बिल्कुल. So चावल की जगह रागी, that's it. The only replacement is instead of rice use रागी का आटा. That's it. बाकी सब वही करके देखें. It's fantastic, comes out really nice. It's tasty, delicious, crisp. अंदर थोड़ा सा वो जैसे मैसूर मसाला वाला थोड़ा सा मसाला डाल के मुंह में पानी. Even rava idlis also turn out very good. रवा में इडली तो दही में मिक्स किया थोड़ा सा ऐसे. Yeah, it is. थोड़ा सा fruit salt डाला. But tell me, chef, instead of fruit salt, what we do as South Indians is we put methi in it. Okay. So that, लेकिन उससे अगर आप मेथी डालो तो my mom always says कि उसको overnight रखना चाहिए because फिर नहीं तो वो इतना फूलता नहीं है. बिल्कुल. So methi is not replacement of fruit salt. So then why is it put? Fermentation होती है. So overnight रखने से fermentation physical natural fermentation हो रही है. जब fruit salt जब डाल रहे हैं, that's like केक के अंदर जो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, that's fruit salt, right? तो उसकी वजह से उसको जब fermentation होती है वो that's chemical fermentation, one is physical fermentation. एक instant वाली है और एक natural वाली है. So natural will actually always be better, right? अभी मतलब हमारे पास natural में fermentation में दूध से दही बनाते हैं. अभी तक हमारे पास ऐसा नहीं है कि दूध पड़ा हुआ था उसमें ये पुड़िया डाली दही बन गई, ऐसा नहीं होता है, राइट? कि थोड़ा सा 5 मिनट इसको स्टीम कर दिया दही बन गई, वैसे बन भी जाती है. यू कैन मेक भापा दही. या यू कैन मेक, ओह माय गॉड आई लव दिस, जैगरी डाल के ना तो उसको स्टीम करना है. इट्स लाइक एन इंडियन कस्टर्ड बेसिकली. ओह अमेजिंग, बहुत मजा आता है यार. अच्छा वो जैगरी कौन सा वाला जैगरी था आपने जो मुझे खिलाया था? ऑर्गेनिक वाला शेफ. नहीं अभी जो लास्ट वाला था. हाँ एक और जैगरी भी था, पाम जैगरी. ये बड़ा डिस्कशन चलता है हम लोगों का शेफ का ना. पाम जैगरी ये स्वीटनेस कौन सा स्वीटनेस है? No, natural substitutes are always very good, healthy, and they are very good. तो अभी आप क्या पी रहे हो वैसे? हाँ मैं मैंगो विथ आलमंड मिल्क का मिल्कशेक पी रही हूँ. अच्छा यू आर सो आपकी नजर आई टेल यू. मेरे पास में आलियोना ऐसे पानी का वो रख गई है, मतलब मैं सोच रहा हूँ सामने दिख रहा है मुझे. आप ग्रीन टी पी रहे हो? मैं लंच के बाद मैंगो खा. मैंने लंच के बाद मैंगो. हाँ मैंगो भी सब लोगों को, मम्मी को मैंगो बहुत पसंद है और मेरी मम्मी डायबिटिक है. So this is the only time she'll have 2 mangoes or you know, and actually she has sometimes 4 mangoes a day. But the funny thing is I don't know how she's able to sustain it. तो ये जो डायबिटीज के बारे में भी ये जो मिथ है कि मैंगोस कम खाना चाहिए जो सीजन में है, अगर आपका मन करता है प्लीज आप डॉक्टर से सलाह लेके हाउ मच इंसुलिन यू आर टेकिंग, बिकॉज माय मम हैज बीन डायबिटिक फॉर सम टाइम. लेकिन जब वो मैंगोस खाती है पता नहीं हाउ शी इज एबल टू मेंटेन इट. मे बी बिकॉज शी इज नॉट ईटिंग इट विद गिल्ट.
एंड Right. शी मेक श्योर दैट जो कार्ब्स है वो बहुत कम खाती है, तो शी ओनली ईट्स, या शी टेक्स केयर ऑफ दैट. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. बैलेंस. बैलेंस, एग्जैक्टली. अगर आपने कुछ मजे करने हैं तो थोड़ा कुछ और बाकी चीजों के मजे कम कर दो, ये मत बैलेंस कर लो. बॉडी गिव्स यू सिग्नल, बॉडी आपको बता देती है कि ये गड़बड़ होने वाली है, सो टेक केयर. इट्स नॉट कि आपको पता नहीं चलता, लेकिन पता खुद को ही चलता है. हैव टू टेक केयर. मतलब अगर आपने आज बहुत मस्ती कर ली, कल थोड़ा सा बैलेंस थोड़ा उसको कर लें. टेक केयर. थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी उस दिन थोड़ा बढ़ा लें. इट्स ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बेसिक सारे प्रिंसिपल्स हैं, पर करने पड़ते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं होता. Something's gotta give 100%. Yeah. I feel कि जिंदगी में there's no free lunch unless हाँ. you are having lunch at Sanjeev Kapoor's home. ये जो आप धमकी देते आ रहे हो मुझे कि आपको मैं लंच पे बुलाऊंगा, ये धमकी मतलब खाली धमकियां हैं. नहीं, ऐसा हाँ. नहीं है. अभी तो नहीं मैं बोल सकता. यू आर नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर. इस डायरेक्शन में लॉकडाउन के बाद. ये जो पूरा फायदा उठा रहे हैं. करेक्ट. कल मुझे किसी ने बोला देखो तुम जहां पे भी जाना चाहती हो. क्या? एक और चीज बताता हूँ. आप नॉट ओनली योर सिस्टर इज देयर, माय सिस्टर इज आल्सो देयर. नम्रता, आई जस्ट सॉ. क्या नाम है उनका? नम्रता. She's in. Hi, how are you? श्वेता सिंह, शबाना, हाय, नवनीत, सब लोग जो हमें देख रहे हैं इस वक्त. विपुल गढ़वी, हेलो, नमस्कार. साहिल राणा. आई होप कि हमारे बातचीत से आपको यू गॉट समथिंग टू टेक बैक होम. यू आर ऑलरेडी एट होम, समथिंग टू कीप विथ यू एट होम. एंड आई जस्ट होप दैट, और कुछ नहीं तो we've been able to put smiles on your faces, and we've got so many people with our chef, and it's so beautiful to see that people are enjoying this conversation. काफी वक्त से हम बात किए जा रहे हैं, वक्त का मतलब पता ही नहीं चला हम लोगों को. बट healthy juice for immunity, chef, they are saying. healthy juice. हेल्दी जूस. तो मैं तो क्या करता हूँ, हमारे घर में हम एवरी डे वी हैव स्लो जूसर हमने रखा हुआ है. वंडर शेफ क्योंकि हमारी कंपनी है तो हमारे पास तो राइट. तो उसमें हम लोग जो भी सीजन में चीजें होती हैं, जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं, नेचुरली उसमें मतलब करेला भिंडी नहीं डालेंगे, राइट, बट व्हाटएवर. मतलब उसमें टमाटर भी होता है, उसमें सेब भी होता है, संतरा भी होता है, व्हाटएवर इज देयर इन सीजन, उसको डाल के थोड़ा सा उसके अंदर बीटरूट डाल देते हैं. सो उससे क्या होता है, एवरी डे द कलर इज सेम. उसमें पालक के पत्ते भी होते हैं, उसमें सारी चीजें होती हैं. बिकॉज ऑफ फ्रूट इज नाइस एंड स्वीट, इट हैज लॉट्स ऑफ फाइबर, एंड इट्स समथिंग दैट यू मेक इट अ डेली हैबिट. और उसकी वजह से मतलब एकदम फ्रेश रहते हैं सारा दिन. दैट्स. एंड आंवला जब हो, थोड़ा सा आंवला उसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा अदरक उसके अंदर डाला. बिकॉज is so fruit and vegetables in season, fantastic. Yes, in season. That is important. Yeah, that's important. In season आपने उसके अंदर डाले, उसका जूस बनाया, whatever it is there. So कभी कभी मैं कहता हूँ ABC, apple, beetroot, carrot, simple. अंदर थोड़ा सा आंवला, थोड़ा सा थोड़ा सा पुदीने का पत्ते भी डाले. तुम्हारे घर में पुदीने भी लगे हुए हैं, वो भी डाल दिया. कभी आता है तो अच्छा थोड़ा तुलसी के पत्ते होते हैं, वो डाल देते हैं उसके अंदर. So I think one is that variety खाने के अंदर होनी चाहिए. You have to keep on changing. एक ही चीज मत खाते जाएं, एक ही चीज मत खाते जाएं, एक ही तेल मत खाते जाएं. Yeah, you have to change. My favorite juice is दूधी. Then I put a bit of celery sometimes जब मिल जाता है, अदरक and an apple. Oh, so nice. It tastes so good. And mint leaves. Mint, so it's a nice balance, you know. Yeah. और पता ही नहीं चलता कि दूधी है उसमें. That's one way of kind of getting. दूधी के कोफ्ते भी बड़े कमाल बनते हैं. मैं ना जब दूधी, you were saying talking about pancake, my mom makes this दूधी के कोफ्ते, लौकी, हम तो घिया बोलते हैं पंजाबी में, राइट. घिये के कोफ्ते, बीच में मतलब उसमें उसको ग्रेट करके उसका पानी निकाल के थोड़ा बेसन में डाल के we add इमली उसमें. इमली, हाँ, एक इमली का एक दाना, बिकॉज व्हेन यू ईट दैट अंदर खट्टा टेस्ट आता है. एंड इट वुड आल्सो स्टिल हैव सीड, क्योंकि पहले तो वो सीड वाली मिला करती थी, राइट. एंड अभी सीड्स क्यों निकाल दिए? अभी इजी करने के लिए लोग लेजी हो गए हैं ना, तो पहले से निकाल के दे देते हैं. आने वाले टाइम में पता क्या होगा,
आम वाले के पास आप जो लेने जाओगे तो तो बोलेंगे गुठली कौन नहीं से होगी। हाँ, बिना सीड वाले चाहिए, सीड वाले चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि काश हम लोग 50 या 70 साल पीछे जाते। एंड द वे पीपल यूज टू ईट, सीजन का ही खाते थे वो लोग तब खाना, और जो सीजन में मिलता था तब वही खाते थे, एंड जो लोकली अवेलेबल होता था। अब मुझे ऐसे लगता है कि जितना ये जो फैड हो गया है, स्पेशली फॉर द अपर मिडिल क्लास, कहाँ कहाँ से सामान आ रहा है, कच्चे तोड़े जा रहे हैं, वो जो इम्पोर्ट में जितना वक्त लग रहा है उन चीजों को लेके आने में, उसके बावजूद दे आर ट्राइंग एंड प्रोक्योरिंग दोस थिंग्स। आई जस्ट फील कि क्या खराबी है जो हमारे यहाँ यू नो ग्रो हो रहा है। आई थिंक वी शुड प्रमोट आवर फार्मर्स, वी शुड प्रमोट यू नो द पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक अ लाइवलीहुड ओवर हियर। और बहुत स्वाद होता है। लेकिन आई हैव ऑलवेज नोटिस, जो मैं बॉम्बे में गोभी खाती हूँ और जब मैं पंजाब जाती हूँ और वहां पे जो गोभी की सब्जी बनती है, क्यों इतना फर्क होता है गोभी में? आई डोंट अंडरस्टैंड इट। दैट आपने दैट नोटिस किया है ये बात? इट्स मोर क्रंची, देयर इज अ स्वीटनेस। इज इट पानी? हाँ, एक एक पानी है, फ्रेशनेस है, एयर है, एंड मेंटली आल्सो वी बिलीव कि यहाँ पे अच्छी होगी, राइट? वो भी हमें लगता है, बिकॉज वी स्टार्ट टू बिलीव कि ये चीजें अच्छी होंगी। तो उसमें काफी ऐसी चीजों में प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है, बट नेचुरली फ्रेशनेस होती है, पानी का फर्क होता है, वैरायटी का फर्क होता है। मतलब जैसे आम, यहाँ पे हमारा जो आम होता है और जो लखनऊ के पास में आम है, दोनों अलग है, दोनों की वैरायटी अलग है। बट आपको अल्फांसो पसंद आना शुरू हो गया तो आपको वो कहेंगे वो वैसा नहीं है, ये थोड़ा खट्टा होता है, उसकी खटास अच्छी लगती है। जिसको एकदम मीठा अच्छा लगता कहता है वो बहुत अच्छा है। हैदराबाद वाले कहते हैं उनका आम बहुत अच्छा है, मेक्सिको वाले कहते हैं उनका आम अच्छा है। सो एवरीवेयर सब और चेंज जो है, once in a while we like, and there are certain places जहाँ पे ऐसे मतलब अपने आप ही लगता है कि ये तो खेतों वाली जगह है, पंजाब है, इट्स दैट प्लेस जहाँ पे खाना सब कुछ अच्छा होगा और ऑल दैट। तो नेचुरली वैसे ही इमोशंस आने लगते हैं मुंह में, सलाइवा स्टार्ट्स टू वर्क इन दैट वे, एंड फील कर रहा है कि चलो पंजाब ही चलते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि गिलोई अच्छा होता है क्या, क्योंकि कहीं आपने सुना होगा कि मैं रोज सुबह उठ के गिलोई का चाय पीती हूँ। इट्स लाइक आई गेट द गिलोई रूट। इनफैक्ट मेरे गार्डन में वी स्टार्टेड ग्रोइंग इट। और आजकल आपने देखा होगा मैं बैंगन भी ग्रो कर रही हूँ और चिली भी ग्रो कर रही हूँ। तो ये एक शौक सा हो गया है। इट्स बिन माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू बी एबल टू फार्म। बट गिलोई, क्योंकि मैं साइनस के साथ बहुत सफर करती थी, इसके बावजूद कि मैं बहुत योगा करती हूँ, बहुत प्राणायाम करती हूँ, but I feel there's something in my system that aggravates my sinus. Maybe it's the milk, क्योंकि पता नहीं अभी मिल्क में क्या है कि it's पहले तो सब लोग दूध पीते थे, दही खाते थे बिना किसी हिचकिचाहट के, but you see so many of us have become lactose intolerant. मैं lactose intolerant नहीं हूँ, but maybe it kind of aggravates my sinus. तो उसके मैं किसी से मिली, उन्होंने बोला मुझे कि गिलोई का जूस पीजिए, और ये छोटा सा रूट लेती हूँ मैं इतना, और उसको मैं क्या बोलते हैं, क्रश करती हूँ, एंड उसको हम गरम गरम पानी में 15 मिनट तक उबालते हैं, एंड आई पुट अ बिट ऑफ सिनेमन इन दैट एंड आई ड्रिंक इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। एंड आई कांट टेल यू शेफ, इतना फर्क पड़ा है उससे। and it's known to be an immunity booster. तो अगर आपको गिलोई मिलता है, मैं तो फ्रेश फॉर्म में लेती हूँ, लेकिन अगर आपको ड्राई भी मिलता है, बहुत सारी जगहों पे मिलता है, एंड इट रियली सपोज टू। हाँ जी, बहुत आसानी से मिलता है। अगर आप ग्रो कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, बहुत आसान है। इट्स लाइक इट्स लाइक अ वाइन, इट जस्ट ग्रोज एनीवेयर। सो अगर आपके हाथ लग जाता है, इट्स सपोज टू बी नोन एज द किंग ऑफ हर्ब्स एंड रूट्स। तो मेरी जिंदगी में तो बहुत फर्क पड़ा है, और I actually started having it. I have to tell you this incident. मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट है, उनके जो नेबर है, वो कैंसर से सफर कर रहे थे, और डॉक्टरों ने हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा कि ये ज्यादा दिन नहीं बचेंगे।
तो ये आदमी आए एंड ही सजेस्टेड गिलोई का जूस एंड व्हीट ग्रास जूस एवरी मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक. He got cured, chef. Wow. So that's what I'm saying, you know. Now I don't know if it's sometimes also a placebo effect कि किसी बंदे ने आके बोला कि ये आपको क्योर करेगा, तो आपने अपने मन को समझा लिया कि भैया अभी मैं क्योर अगर होऊंगा तो इसी से होऊंगा. It's all about the mind as well, you know. Yes. So you have to be receptive and तभी वो वर्क भी कर जाएगी आपके लिए. तो मेरे लिए तो बहुत लाभदायक रहा है गिलोई का जूस. सो ऑल ऑफ यू हु हैव यू नो वॉच्ड अस. फ्रेश मैंने हमेशा ड्राई ही सुना है, ड्राई ही फ्रेश देखा. तो बहुत, इट्स लाइक ग्रीन टी. थोड़ा सा देयर इज अ टिंज ऑफ बिटरनेस टू इट, सो द सिनेमन काइंड ऑफ बैलेंसेस इट आउट. हाँ, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, बट प्रेफरेबली अगर आप ऐसे ही लें तो बेटर. या आई थिंक आयुर्वेद की अगर इंडिया में अगर देखें तो टॉप 10 में गिलोई वुड बी डेफिनेटली देयर. Ganda is there, Shatavari is there, Triphala is there, Amla Triphala is is there. also very good. Yeah. Triphala is great for the gut, you know, and great for immunity. So मैं आयुर्वेदा में बहुत believe. In fact, I'm actually reading a book. Luckily it's here for me, but I'm reading on Ayurveda cooking. Cooking. Okay. Yeah, for beginners. देखिए मैं beginning से शुरू करती हूँ. So I'm getting introduced, you know, and it's such a beautiful book. It doesn't just talk about food; it talks about balance and healing. So each one of us, we are governed by a certain element. Kapha ho, with vata ho, pitta ho. तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सैलेड खाने से वो बहुत हेल्दी हो जाएंगे. कैन यू इमेजिन, मैं पहले बहुत सैलेड खाती थी, फिर मुझे पता चला कि आई एम गवर्न बाय वता. सो मुझे एक्चुअली रॉ सूट नहीं करता. So I have to slightly either blanch the spinach or the kale or the lettuce also. मैं blanch करके फिर मैं अपने सैलेड में डालती हूँ. पूरा पिलपिला हो जाता है, but ठीक है. But then some people say that 70% of your diet should be, if you can include at least 30%, they say you should include raw. So it works for some people. What works for A may not work for B. Clearly, मतलब मैं मेरा जो पित्त है वो elevated है. So I have to eat accordingly. मतलब मुझे क्या नहीं खाना है, क्या खाना है. I think अच्छा, बड़ा कमाल की बात है. मतलब इतने सारे लोग हैं. Thank you very much who have been with us. And sorry, काफी लोग कह रहे हैं कि आप हमारे से भी बात कीजिए, आप आपस में भी बात कर रहे हैं. नहीं, वो क्या है कि शिल्पा इतनी आसानी से मिलती नहीं है. नहीं, बहुत I must say that मतलब मुझे हमेशा से ऐसा रहा है कि जो फिल्मों वाले लोग होते हैं ना, वो मतलब वो तो कुछ अलग ही होते हैं. बट यू आर, आई वुड से, वो सारे जितने भ्रम थे ना, वो आपने तोड़ दिए हमारी जिंदगी के. बिकॉज आफ्टर वी मेट यू, तो जैसे आपने कहा कि हमारे स्टूडियो में आप आते हैं, आपका स्टूडियो है वो. हम किसी को वैसे बाहर वाले कोई नहीं वहां पे आता, कोई नहीं करता. बिकॉज वी से कि हमारा काम ही इतना है, वी डोंट वांट टू. बट आवर टीम, हमारे जितने शेफ्स हैं, जितने लोग हैं, दे आर इन लव विद यू. दे मतलब इतना अच्छा लगता है उन सबको कि अच्छा वो कुछ भी होएगा. मतलब वो हमेशा शिल्पा की बैटिंग कर रहे होते हैं, सब कुछ. सो इट इज so happy it's there that you bring in so much of positivity, which is seriously that is I think I remember. और खाने का, would you say that खाने का शौक came from your mom? Yes, I think we're all foodies. As you would know, Shetties love their food. जब शादी पे जाते हैं हम लोग, दूल्हा दुल्हन के लिए नहीं जाते, हम खाने के लिए जाते हैं. So, I think it came down from my grandmother, to be honest. Okay. Because she was a brilliant cook and she made the most simple things, and I had the good fortune कि मैं उनके साथ रही. Because मेरी माँ काम पे जाती थी, मम्मी डैडी दोनों काम पे जाते थे. तो एक ऐसा वक्त आया शमिता के, जब शमिता पैदा हुई तो मम्मी ने मुझे मेरे ग्रैंडमदर के घर पे छोड़ा थोड़े दिनों के लिए. बिकॉज इट वाज वेरी हार्ड टू मैनेज 2 children.
तो मेरी ग्रैंडमा जो मेरी ग्रैंडमदर थी वो ऐसे मतलब 20 मिनट में खाना बनाती थी और ऐसे बनाती थी, बीन्स भी ना स्टीम करके शी वुड जस्ट चॉप एन अनियन एंड सिर्फ छौंक देती थी घी का, एंड दैट यूज्ड टू बी सो टेस्टी विद टमाटर का सार, यू नो, सिंपल like that watery sour. I still remember that with brown Mangalore rice. So I think she made, and जब भी वो चिकन बनाती थी तो you know she would keep the special pieces aside. तो कुकिंग का वो स्वाद का जो शौक है मुझे वहां से मिला है, आई थिंक फ्रॉम माय ग्रैंडमदर, बिकॉज आई रिमेम्बर मेकिंग मसाला विथ हर. पहले तो वो ग्राइंडिंग स्टोन होता था. I know. Yeah. So she Yeah. had that whole grinding stone. So we'd make all our chutneys and all our masalas because Mangalorean cooking में हम कोकोनट का बहुत इस्तेमाल करते हैं. तो everything सब सारी चीजों को वो ऐसी हाथ से, कभी मिक्सर का यूज ही देखा नहीं मैंने. So I understand that सिलबट्टा and उससे जो स्वाद आता है मेरे घर में, I actually chucked out. I have a mixer, लेकिन जो मसाले होते हैं और कोकोनट के चटनीज होते हैं वो सिलबट्टे पे ही बनता है. So time लगता है, but it's beautiful. So let me tell you, actually लोग कहते हैं कि उसमें स्वाद ज्यादा आता है. So there is a scientific reason for it. वो ये है कि जब सिलबट्टे वगैरह पे है चीजें क्रश होती हैं, पिसती हैं. जितने मिक्सर होते हैं ब्लेड में कटता है. Both are separate processes. तो मैं कहता हूँ करके देखो, मिंट की लीव को हाथ में प्रेस करो, स्मेल करो, मिंट की लीव को काट के स्मेल करो. The flavor profile is completely different. बिल्कुल, right? बिल्कुल. तो एकदम वो आएगा. वो फर्क इतना है कि टाइम नहीं होता लोगों के पास, तो जल्दीबाजी में इट्स अ ट्रेड ऑफ. बट इफ यू कैन हैव दैट, फैंटास्टिक. मैं वही बोल रही थी. आई थिंक आई डाइग्रेस्ड कि आई विश आई समटाइम्स मिस द वे पीपल लिव्ड 70 साल पहले तक, इवन अप टू दैट टाइम, यू नो, बिकॉज स्नैकिंग नहीं करते थे इतना बीच में. दे वुड वेक अप अर्ली. दिन की शुरुआत अच्छे खाने के साथ करते थे, like a wholesome fiberful breakfast, not cornflakes, you know what I'm saying, no cereals. There was a fresh breakfast made. My grandmother, I remember, she would whip up things so fast. She would take poha and she would wet it, और उसमें थोड़ा सा दूध डालते थे, कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, ऐसे ही कर you know, they had that little thing. Yeah. I don't even know what it's called. उसमें थोड़ा सा कोकोनट निकाल के डालते थे, थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा गुड़ डालते थे उसमें, नमक और मिर्ची का पाउडर, and she would mix it all together and she would serve it as a breakfast. And I still remember, I can feel the tingle in my taste buds, क्योंकि वो जो स्वाद होता था. Yeah, it's simple, but try it and it was so amazing. And no cooking. So they, मतलब उसके अंदर भीगा हुआ पोहा है, कोकोनट है, थोड़ा सा गुड़ है, नमक है, चीनी है, कोकोनट मिल्क नहीं. हाँ, दूध. She would use the coconut milk only. Coconut milk. Yeah, तो उसी में वो घुल जाता था, and little chili powder to give it that kick, and salt. So see the balance. So that's what I'm saying. So I mean, my love for cooking actually came from, but I'm talking about how they used to live. The lunch would be heavy and dinner was very, very simple, you know. So and they would work after eating their lunch. Today we don't work the way, you know, people used to work before. That's why we're stressing out about क्या खा रहे हैं, हम कितने steps चल रहे हैं, हमको काउंट करना पड़ता है. मोदी साहब ने फिट इंडिया के वक्त जब उन्होंने लॉन्च किया था, बहुत कमाल बात बोली कि अभी हमको वॉच रखना पड़ता है देखने के लिए कि हमने इतने स्टेप्स अपने गोल्स को मीट किए कि नहीं. इट्स रिडिक्युलस. सो आई जस्ट फील वी बिकम क्वाइट लेजी एज अ रेस. तो वो मैं चीजों को मिस करती हूँ. तो आई फील आई एम अ ओल्ड सोल इन अ न्यू बॉडी. आई मिस not being in those times, but I also I'm very grateful कि अभी इस जीवन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और वो मैं अप्लाई करना चाहती हूँ अपने बच्चे के परवरिश में. पता है मेरे बच्चे ने शुगर टेस्ट ही नहीं किया 2 साल तक, 2-3 साल तक. हाँ, और उसके बाद भी अभी भी लोग कॉल मी लाइक अ मम्मी मॉन्स्टर, क्योंकि या बिकॉज आई ट्राई नॉट टू गिव हिम शुगर. अभी कोई भी डाइट शायद A या B को सूट नहीं करे. हम
अलग लोग हैं, हमारी प्रवृत्ति अलग है. So what may agree with me may not agree with you, but the one thing that is a constant is that sugar is bad for you, or excess of sugar is bad for you or me. And it is as addictive or more addictive than even cocaine. So I think we need to be cognizant about that. इस पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज में आजकल शुगर को लेस करके उसे खूबसूरत बनाने के लिए या उसे ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे पेश कर देते हैं शुगर के साथ. तो उसका थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए, और लोग अभी हमको मार डालेंगे अगर हमने ये बातचीत बंद नहीं की. I know, मतलब ये But I मैंने really इतना enjoyed लंबा this session. No, it was fantastic. It was so much of every time I speak to you, there's so much to learn, so much of positivity that you bring, and stay like this. इसी तरह से लोगों को खुश करते रहो, हमारे जैसे लोगों को खुश करते रहो, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ सबके साथ में, ऐसे ही रहो, and may God bless you with everything that you dream of and much more. Thank you, Chef. Thank you. And I have so much respect and love for you and adulation. जो आप करते हैं आसान नहीं है. You have really been a trendsetter in the food industry, and great luck to you and your family. And जितने भी हमें देख रहे हैं, please इस वक्त का सही इस्तेमाल करिए, rules को please follow करिए. Do not try and flout the rules. अरे मैं 2 मिनट के लिए नीचे जाके जरा हवा खा के आता हूँ. I mean, you don't know कौन आया है वहां से, कौन गुजरा है. रिस्क मत लीजिए, because it's not worth it. Nothing is more important than good health in life. तो yes, stay healthy, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. जाके मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वंडर शेफ के सामान को खरीद लीजिए. फूड टीम देखिए, आपका यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा घर में अच्छा खाना बनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. Love you guys. Thank you all for joining us. Bye, Very much. Chef. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Yes.